Good morning, all my dear students. Standard reading, chapter first and second complete. Chapter first factory and chapter second is relation and function. Define all types of relation and all types of function. Chapter number third. Trigonometric function. Trigonometric is the base on mathematics for all students. ये चैप्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये हम कहें कि दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच चैप्टर you study in standard 11th and 12th. मतलब ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस 11th और 12th के हर चैप्टर में है. ये हर चैप्टर के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे. 12th में भी 16 और 17 चैप्टर मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री प्रेजेंस इन ऑल चैप्टर. First, standard growth, relation and function, trigonometry present, inverse trigonometry, maybe trigonometry, determinate matrix, maybe presence of trigonometry, differential equation limit, maybe presence of matrix or trigonometry, application of derivative, presence of trigonometry, integration 75%. Based on trigonometry, application of integration, differential equation, and vector 3-dimensional geometry. Means all chapter के अंदर हमारा trigonometry present है. This is important. इसका ये important है कि your 11th and 12th textbook may be the 50% question depend on the trigonometry. ओके, इम्पोर्टेंस हो गया. सेकेंड थिंग, आपने स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नोमेट्री जनरल स्टेटस के अंदर आपने उसको पढ़ा था. हमें स्टैंडर्ड 10th से अपने नॉलेज को मेंटेन करना है. ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड 10th में पढ़ लिया तो 11th में उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वही तुम्हारा बेस है. For all students, within 2 or 3 days, you solve all questions and all property of standard 10th, chapter 8 trigonometry. Okay? हम standard 10th से ही चलेंगे, क्योंकि based on trigonometry in the chapter 8 standard 10th. Trigonometry is the ratio of sine and angle. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रेशियो ऑफ साइड एंड एंगल. आपने 10th में स्टडी किया होगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे. राइट एंगल ए बी सी. ओके, इफ बी इज 90 डिग्री, फाइंड एंगल सी एंड एंगल ए एंड एंगल सी एंड ए. ओके, फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा, हियर सी इज थीटा, साइन थीटा, ये भी आपको याद रखना है. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. फॉर ऑल स्टूडेंट जिसको नॉलेज है नो डाउट, लेकिन जिसको जरा सा भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेगा, तभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगा. थीटा इज द अपोजिट, दिस एंगल इज अपोजिट, दिस इज बेस या एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज. ओके, ए बी अपॉन बी सी. AB upon AC, BC upon AC. You know that. थोड़ा जल्दी करेंगे हम, करेंगे पूरा. tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट means AB upon BC. अपोजिट tan अपोजिट cot थीटा. आप जानते हो cot थीटा अपोजिट tan थीटा अपोजिट cot थीटा means BC upon AB. cos theta opposite
hypotenuse upon AC upon BC. Sine opposite cosec theta. You know that sine opposite cosec theta means hypotenuse upon opposite is equal to now AC upon AB. This angle is opposite side and adjacent hypotenuse. If you consider angle A opposite this BC, adjacent this AB and hypotenuse is AC. You know that. यहाँ से हमें फार्मूला फाइंड आउट होता है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा. ओके बेटा, sin थीटा इज अपोजिट ऑफ cosec थीटा. फर्स्ट फार्मूला sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. फर्स्ट फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा. नाउ cos थीटा into sec theta equal to 1. Okay, tan theta equal to 1 by cot theta. Now tan theta equal to 1 tan theta into cot theta equal to 1. Okay, that is the three are most important formula: sin into cosec 1, cos into sec 1, tan into cot 1. Clear? सेकेंड फॉर क्वेश्चंस हमने आपको क्वेश्चन दिया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योर 10th टेक्स्ट बुक में भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन. इफ ट्रायंगल ABC नाउ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ABC B इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज 17 एंड 7 फाइंड. ऐसे हमारे आगे क्वेश्चन है हमारे पास. फाइंड एंगल cos sin A. ओके बेटा, AC BC एंड AB. फर्स्ट फाइंड साइन AB यूज ऑफ पाइथागोरस. AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. 17 स्क्वायर 289 माइनस 49 means 225. Now AB equal to 15. You find the angle cos C. Cos C equal to adjacent upon hypotenuse 7 upon 17 sin A. Sin A is the opposite 7 upon 17. You find all remain angle for C and A. अब हमने वन फाइंड किया cos C and sin A. You find the sec C, tan C, cot C, sec C, cosec C. You find cos A, sin A, tan A, cot A, sec A, cosec A. Okay, that is the most important questions. आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए. अपने साइड फाइंड करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. इन दिस टाइप क्वेश्चंस स्टैंडर्ड 10th एक्सरसाइज 8.1 may be present. Second thing, identity. Identity is the most important. There are three main identity. You also know that, but I will not prove the identity in this class. So only write the identity. First identity is the sin square theta plus cos square theta equal to 1. यहाँ से आपको दो आइडेंटिटी और मिलेगी. cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Now sin square theta equal to 1 minus cos square theta. First identity क्लियर हो गई. फार्मूला तो आपको ऐसे लर्न होना चाहिए जैसे कि पानी बहता है. कुछ भी आपको सोचने की जरूरत ना हो. फार्मूले आपको बिल्कुल कंफर्म लर्न होने चाहिए. कैसे होंगे? प्रैक्टिस से. आप इसी चीज को 20 टाइम्स में तो अपने आप लर्न हो जाएगा. 10 टाइम्स लर्न हो जाएगा. सेकेंड, यू नो दैट 1 plus
स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आंख गलत कर रहा था लेकिन दिमाग में बोल दिया। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन राइट साइड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, that three properties for second. Third 1 plus cot square theta is any student cosec square theta and cot square theta is equal to cosec square 1 right side minus 1 is equal to cot square theta right side cot square theta. Now the third is the most important identity. Okay, you know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cos theta is equal to cos theta upon sin theta. कोई भी फार्मूला छोड़ना नहीं चाहिए। 3 आइडेंटिटी हो गई। एंगल टेबल फॉर आवर स्टूडेंट लर्न होना चाहिए। एंगल टेबल साइन 10th की बुक में जाके आप देख लेना। साइन 0 डिग्री 0 पाई बाई 30 डिग्री 1 बाई 2 45 1 अपॉन रूट 2 साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 91। कास के लिए अपोजिट चले जाओ। कास 0 1 कास 30 रूट 3 बाई 2 कास 45 1 अपॉन रूट 3 रूट 2 कास 60 1 बाई 2 कास 90 0। tan थीटा फार्मूला लिखा था साइन बाई कास 0 बाई 1 0 cos tan 30 1 upon root 3 tan 45 1 tan 60 root 3 tan 90 undefined by infinite. Similarly we learn the cot sec and cosec. Okay, complement angle, complements of trigonometric function. Function, you know that theta 90 degree, this is called 90 minus theta. आप अच्छे से जानते हो। ABC sin 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is equal to tan theta. Okay, tan 90 को गलत बेटा so cos का sin theta tan 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta and sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. For our student standard 10th each topic weekly, ये सारे फार्मूले स्टैंडर्ड टेक्स्ट में हैं। ओके, ये सब आपको लर्न होना चाहिए फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बिल्कुल कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड 11th, अब हम 11th पे चलते हैं। फर्स्ट में भी था जो टेस्ट angle, you know that angle तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। that is initial point, final point, second line means two lines will be joined at a point OA and OB. Now initial point joined O, that is called angle. जो यहाँ पे बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब एंगल हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव एंगल। क्या? पॉजिटिव एंगल। अब घड़ी देखते हो, घड़ी की जो रोटेशन है, रोटेशन जो क्लॉक, घड़ी का रोटेशन क्या है? आप ध्यान में मान लीजिए 12 मिनट की स्पीड है।
ये मान लो आपका क्लॉक है, ये मैंने क्लॉक ले लिया, दैट इज सेकेंड नीडल। आप देखो तो सेकेंड नीडल का रोटेशन ऐसे होता है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम जो है घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिधर से हम घड़ी घूम रही है नीडल, उस डायरेक्शन की जब रोटेशन करेंगे, जब हम चलेंगे, दैट इज नेगेटिव एंगल। इफ rotation around middle is clockwise, if angle may be rotation around anti-clockwise is called positive angle. You know that is the initial O and A। दो ही चीज मैंने बोला है, जो आपके पास घड़ी मैक्सिमम क्लॉक होता ही होता है। इफ आई एम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम मान लो ये मान लो मिडल है, यहाँ से जब हम ऐसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में का एंगल पॉजिटिव। ये बेटा कैसा एंगल हुआ? पॉजिटिव एंगल। ओके, पॉजिटिव एंगल। सेम कंडीशन नेगेटिव एंगल। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने का है। नेगेटिव एंगल मैंने क्या बोला? आई रोटेट मेक अ एंगल डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज एट द इनिशियल लाइन OA। दिस इज ए पॉइंट, I will rotate, I will make an angle clockwise direction। आप देखो clockwise direction ऐसा है, ऐसे आगे हम make an angle negative angle। This is a negative angle। Okay? Your protector, आप देखो protector पे ये है बेटा, this is a 0 degree 90 center point 0, 90 and 180। आप प्रोटेक्टर ले लो, उसके अंदर ले लो 0, 90, 180 मीन्स दैट इज हाफ सेमी सर्कल। एक ऐसा है सेमी सर्कल का हाफ है, अगर हम उसको अपोजिट कर दें तो दैट इज मीन सर्कल। अगर मैंने प्रोटेक्टर को इस साइड में मूवमेंट करा दिया, दैट इज एंगल 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। क्लियर हो गया? मान लो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, ये रोटेशन हुआ पॉजिटिव कितना 180 डिग्री। ओके, सेकेंड टाइम एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गए हम 270 डिग्री पॉजिटिव। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड स्टेज आई विल रोटेट, that is a positive 360 degree, means one rotation complete। हम किसी भी पॉइंट से one rotation complete करेंगे, how many angle here? 360 degree। same condition, that is a positive angle, same condition, half rotation of protector। now 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री। सारे स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, दिस इज पॉजिटिव एंगल। मैंने रोटेशन किया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। नो बेटा गलत, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू -90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड थिंग, रोटेशन clockwise direction 100 minus 100 degree, and clockwise direction I complete one rotation, that is minus 350 degree। For all students, angle two line may be the same initial point, make a angle may be the two condition, clockwise and anti-clockwise, positive angle and negative angle।
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेक अ एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेक अ एंगल इज नेगेटिव। ओके, एंगल में बी मेजर बाय टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप से आप पूरी तरह आपके नॉलेज में है, दैट इज डिग्री। डिग्री तो आप जानते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 125 डिग्री, 150 डिग्री, दैट इज ए डिग्री। एंगल मेजर बाय टू टाइप्स। फर्स्ट इज डिग्री। Degree. Now 30 degree, you make a line OA, use protractor या 30 degree, that is 30 degree. Second 45 90 degree, use protractor, make a 90 degree. Clear? 150 degree, 0, 180 degree, now 150 degree, that is 150 degree. You know that. Second is your first degree, you know that. Second is you rotate 230 degree, 0, 180, that is 230 degree, that is 230 degree. Okay, डिग्री क्लियर। सेकेंड रेडियन। रेडियन आपको नहीं पता है, रेडियन रेडियन एंगल इज कॉल्ड सर्कुलर एंगल, मीन्स एंगल मेड बाय अ सर्कल। रेडियन क्या है? रेडियन इज द इट्स कॉल्ड सर्कुलर एंगल। For example, a circle is radius 2 centimeter, 2 centimeter, 2 e। आप एक सर्कल ले लो, रेडियस 2 सेंटीमीटर, एंड आर्क लेंथ भी आप मेजर करो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ, 2 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। रेडियस 2 सेंटीमीटर, you know R। now angle theta। रेडियन मीन्स रेडियन थीटा इक्वल टू arc upon arc length upon radius। Here arc length is 2 centimeter, radius is 2 centimeter, that angle that is called 1 radian, 1 radian, that is called 1 radian। okay, theta is equal to 1 radian। Similarly, means क्या है? Radian is the ratio of arc length and radius। Radian किसका रेशियो है? Arc length and radius। If a circle is radius 1 centimeter and arc length is 1 by 2 centimeter, O A B। Now angle radian कितना आएगा? आर्क लेंथ 1 by 2 upon 1 centimeter is equal to 1 by 2 radian, 1 by 2 radian। ओके, क्लियर हो गया? एंगल मेजर बाय डिग्री एंड एंगल मेजर बाय रेडियन। रेडियन मीन्स ratio of arc length and radius। रेडियन मेक अ सर्कुलर एंगल। रेडियन सिर्फ जो है रेडियस सर्कल पे बनता है। आर्क एंगल रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इफ रेडियस
for all students. Second thing, relation between degree and radian. डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन क्या है? फर्स्ट आप ये नॉलेज रखो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई. पाई में इधर टू वैल्यू, पाई इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट वैल्यू है. नाउ 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री. सेकेंड पाई वैल्यू 22/7. ये तीनों वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पाई आप जानते हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री. 2 पाई इज रेडियन. पाई क्या है हमारा? वो रेडियन है. 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इक्वल टू 22/7 वैल्यू फार्मूले के लिए. फर्स्ट वी नो दैट इफ अ सर्कल, अगर मैं सर्कल की बात करूं, यू रोटेट हाफ सर्कल दैट इज पाई मीन्स 180 डिग्री. कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 2 पाई. क्लियर हो गया? अगर मैंने हाफ रोटेशन मोटिवेट किया है, राउंड किया है 180 मीन्स पाई. 1 रोटेशन कंप्लीट किया दैट इज वैल्यू 2 पाई इक्वल टू 360 मीन्स 2 पाई रेडियन. ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री. तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री हो गया. मीन्स 1 रेडियन मीन्स 180 अपॉन पाई डिग्री. ये देखो आप, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री. तो पाई रेडियन इज, यहाँ पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई है. 1 इंटू पाई रेडियन इज 180 डिग्री. नाउ 1 रेडियन इज 180 अपॉन 5. इफ वैल्यू पाई इक्वल टू सब्स्टिट्यूट 22/7. अगर मैंने जो है पाई की वैल्यू क्या लिख दिया? 180 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7. न्यूमरेटर में जाएगा 1190. 1190 2 11900 360 डिवाइड बाई 11. मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया. 1 डिग्री इक्वल टू 60 नो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट. और आप जानते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री. मीन्स सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे. सीधी बात है. जैसे 340 सेकेंड है, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है. तो क्या करोगे? 360 डिवाइड बाई 340 डिवाइड बाई 6, जो भी आएगा 334/6. ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया. अब मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो 34 6 इंटू 60. अब ये किसमें चला गया? डिग्री में चला गया. तो सीधी सी बात है, सेंटीमीटर कन्वर्टेड मीटर डिवाइड बाई 100. सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में. 100 से डिवाइड करेंगे. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली आप माइंड में रखो, मिनट कन्वर्टेड डिग्री, जितना भी मिनट है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किस पे डिवाइड करेंगे? 60 से. सेकेंड कन्वर्टेड
मिनट, आपके पास जितना भी सेकेंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60। ओके, आप डिवाइड करो 100 इक्वल टू 630 डिग्री में है, 630 डिवाइड बाई डिग्री 5 55, 30 में से 5 8, 7 जा 77 मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई 57 डिग्री 3 बाई 11, ये पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई, डिवाइड किया मैंने 57 डिग्री 3 बाई 11 कन्वर्टेड, डिग्री कन्वर्टेड मिनट तो 60 मल्टीप्लाई तो टोटल कन्वर्ट बाई मिनट 57 डिग्री 180 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 7 0 6 जा 66 4 16 मिनट 4 बाई 11 converted second 240 divided by 11, 11 2 जा 22, 2 0 11 1 जा 11 means 57 degree 16 minute 21 second। क्लियर हो गया, means 1 radian is equal to how many degree minute and second, 57 degree 16 minute and 21 second। Okay, the relation between degree and radian clear हो गया। डिग्री चेंज रेडियन, अगर हमको डिग्री को किसमें चेंज करना है रेडियन में, तो डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 ये फार्मूला है। जैसे 30 डिग्री चेंज, 45 डिग्री चेंज, 135 डिग्री चेंज, 225 डिग्री चेंज and 150 degree change for रेडियन। मान लो हमने 150 को चेंज करना है, 150 डिग्री फार्मूला मल्टीप्लाई पाई बाई 180 दैट इज इक्वल 3 5 जा 3 6 जा मींस 5 पाई बाई 6। इसी तरह आप सब फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री कन्वर्टेड रेडियन दैट इज इक्वल 5 पाई बाई 6 रेडियन। ओके, इसके बाद ये सब आप करेंगे। सेकेंड, रेडियन चेंज या कन्वर्टेड डिग्री, जस्ट उल्टा करके लिखा रेडियन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। रेडियन चेंज डिग्री, रेडियन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, नाउ डिग्री चेंज रेडियन, डिग्री मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई अपॉन 180, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 4, एनीहाउ 8 पाई बाई 5। किसी को भी अगर आपको चेंज करना है किसमें, दैट इज रेडियन चेंज ऑफ डिग्री। फार्मूला फॉर एग्जांपल 8 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। मैंने क्या फार्मूला दिया, रेडियन 8 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5, पाई पाई कैंसल, 5 3 जा 50, 3 0 6, 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24, 24 4 28 d। You change all radian converted degree. Okay, for all my dear student,